by reciting some of the verses from the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahuma laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr fil alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيम. बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठ के तेरे दीवाने कहाँ जाते. खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते. नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते. Assalamu alaikum and good evening to one and all. I am Fazal Imam, your host of today's event organized by the Aligarh Enhance. Let me sequentially introduce our NGO, that is the Aligarh Enhance, our event today, and our speaker to you all respectively. First of all, the Aligarh Enhance emerges in 2014 when a group of friends united with the purpose of engaged in social services and contribute to the society. This youth-driven non-profit organization draws inspiration from Sir Syed Ahmad Khan, the founder from Aligarh Muslim University, and seeks to elevate the hardship faced by marginalized group while promoting their empowerment. In 2017, the Aligarh Enhance became officially registered under the leadership of Aligarh Muslim University's alumni. Their philanthropic endeavor primarily focus on extendable charitable supports to Muslims, OBCs, STSCs, and Dalits. The organization's mission revolves around fostering social development, catering to the welfare needs of the underprivileged, and empowering marginalized community. The core belief of Aligarh Enhance lies in the principle of equality among all individuals, advocating for their right to good health and decent standard of living. By consistently engaging in various activities, the organization aspires to continuously elevate its impact and effectively accomplish its mission of creating a positive societal change. Now, the purpose of this online interactive session is to introduce and briefly discuss the admission procedure which we need to follow in abroad for higher studies. On behalf of Aligarh Enhance, I, Fazal Imam, feel highly obliged and honored to welcome our esteemed guest, Janab Imran Khan Sahab. Imran Bhai is my senior and also my very hard-feeling fellow. He is currently a mate professional from Budapest. He is former AMU alumni and he is currently in Budapest, Hungary. He has awarded by prestigious and most famous scholarship, that is a Stipendium Hungarian Scholarship awardee, and he progressed very well in his academic career. वीडियो नहीं ऑन है ना? सॉरी, किसी को कुछ दिक्कत? नो सर. ओके, ठीक है. तो मैं अभी आपको इवेंट फ्लो बता देता हूं. पहले हमारे स्पीकर साहब बोलेंगे लगभग 45 मिनट या 35 मिनट तक. फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. क्वेश्चंस आप अपने पुट अप करेंगे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और आखिर में वोट ऑफ थैंक्स मैं ही दे दूंगा. अभी हमारे फाउंडर साहब थोड़े बिजी हैं तो मैं ही दे दूंगा आप लोगों को वोट ऑफ थैंक्स. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं बुलाना चाहूंगा इमरान भाई को एक शेर के साथ कि माजूरी क्या चीज होती है, हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ा सा इल्म और कलम होना चाहिए. इमरान भाई, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच फजल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जो लोग यहाँ पर हैं आज, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय साइड? जी भाई, जी बिल्कुल. Yes. Okay. तो आज का जो मेरा प्रोसीजर है, और मुझे काफी वक्त देखना पड़ा क्योंकि ये कुछ टाइम पहले की बात है. मेरी मुलाकात हुई फजल से, और फजल को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, मुझे भी लाइक अ ग्रोइंग पीरियड इन यूनिवर्सिटी. फिर वहां से मैं यहाँ आ गया उन्हीं चीजों में, और बहुत कुछ सीखा. और अब सिखाने का वक्त है कि जो मैं चीजें सीख चुका हूँ आप लोगों तक मैं कर सकूं. तो आज का जो इंटरेक्टिव सेशन है वो है हमारा यूरोप में जब आप आए या फिर एब्रॉड जो भी आपके प्रोग्राम है, उसके लिए आप किस तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं.
जैसे कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप जहाँ भी हैं, आप सेंट्रल में हैं, स्टेट में हैं, तो आप बाहर के लिए जब भी आप सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं जो हमारी कंट्रीज से, जो बाहर एब्रॉड स्टडीज है, उसमें क्या चीजें अलग हैं या क्या चीजें हमें प्रमोट करती हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलें, ठीक है? तो पहली चीज ये है कि जब भी आप जिस प्रोग्राम में भी हो, आप उस प्रोग्राम में ये करें, जैसे इफ यू आर डूइंग अ बैचलर और डूइंग अ मास्टर्स, या आप पीएचडी के लिए भी कैपेबल हैं, अगर आप आना चाहते हैं, तो जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपका ऑनर्स डिग्री है या भी जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें ये करें कि आप जितने अच्छी अपनी चीजें हैं उनको अच्छा करने की जरूरत करें। जो भी आपके कोर्स मटेरियल है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, लाइक इन माई केस, मुझे ये स्कॉलरशिप 2 बार अवार्ड हुई थी। और पहली बार में मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली फुली फंडेड जो मैं चाहता था, और उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। उन्होंने ही क्विट करा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था खुद से आने का। और दोबारा में मैंने फिर सारे प्रोग्राम्स दोबारा करे, और फिर जाके मुझे इतने हार्ड वर्क के बाद मुझे ये चीज़ें मिली। तो पहली चीज़ है, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स में भी हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा इन द सेंस, आप जो भी मतलब जो आपके क्रेडिट्स हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करें, और जो परसेंटेज है, जो सीजीपीए है आपका, सम ऑफ जीपीए जो सम आता है पूरा, आपके 6 सेमेस्टर हैं, जितने भी सेमेस्टर हैं, जिस हिसाब का आपका कोर्स है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत बार स्कॉलरशिप जो नॉमिनीज होते हैं, वो आपको जो अवार्ड करते हैं, वो आपके सबसे पहली क्राइटेरिया यही होता है कि उनके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो आपको आपके सीजीपीए पे बेस्ड देखते हैं कि अभी का अगर मैं ग्राफ बताऊं, तो आपका अगर 7.5 से अबव है, लाइक 75% से अबव है, या 80 क्रॉस कर रहा है, तो यू आर कैपेबल ऑफ फॉर लाइक फॉर एनी स्कॉलरशिप यू कैन हायर एज इजली। इसका एक रीजन ये भी है कि जितना ज्यादा आपका क्रेडिट अच्छे होंगे, जितना ज्यादा आपका जो परसेंटेज अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपके चांसेस हाई हो जाते हैं, और जो परसेंटेज जो रहती है स्कॉलरशिप की, वो भी हायर रहती है। यूरोप में अगर आप देखेंगे, सारी स्कॉलरशिप एक सी नहीं है। कुछ स्कॉलरशिप आपकी फुली फंडेड है, और कुछ क्या है, आपकी पार्शली है। और कुछ में क्या होता है कि आपको अपना अकोमोडेशन खुद रहना है, वो आपको पे करेंगे, लाइक ट्यूशन फी माफ कर देंगे आप, ये चीजें सब होती हैं। और यूरोप के लिए सेकंड चीज क्या है, आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आजकल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग इंटरेक्ट, मैं उस सेशन में भी बैठा हूँ, और मैंने काफी चीजें सीखी उसमें, और आप लोगों ने भी सीखी होंगी। और वो सबसे खूबसूरत बात यह है इसकी कि वो ऑनलाइन भी है, अगर आप लिंक लेना चाहें तो ले सकते हैं फजल से, और उसे सुने और कोशिश करें उसको समझने की। तो कम्युनिकेशन आपका पहला फैक्टर हो जाता है। फॉर्म आप पहले चीज है, आप अपना हार्डवर्क करें, जो भी आप जिस प्रोग्राम में हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करें, उसमें परसेंटेज अच्छे लाएं। दूसरी आपकी कम्युनिकेशन, आज से ही आप अपना शुरू कर दीजिए। आपकी वोकैब्स आपके हाथ में है, जितना आप सीख सकते हैं, जितना ज्यादा आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं वो। दूसरा चीज है आपका बोलने का तरीका, ठीक है? आप किस तरीके से बोलते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन? तो कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, आपकी वोकेबलरी आएगी, आपका बोलने का तरीका आएगा, कि हाउ यू प्रिटेंड द आंसर, आप किस तरीके से, किस ख्यालात में आप बताते हैं, ठीक है? कितना थॉटफुल आप देखते हैं उस चीज को, ठीक है? तो ये चीजें हैं। और आप किस तरीके से, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश होना अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, लाइक और हमारा इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, एक्सेंट भी हमारा डिफरेंट होता है, बट यू कैन प्रिटेंड। आपको सीखना है, आपको लर्न करना है उन चीजों को, ठीक है? कि आर किस तरीके से साइलेंट है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है, ठीक है? किस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब्स के आपके काफी सारे चैनल्स भी हैं, उसमें आप वोकैब में देख सकते हैं खास करके, ठीक है? वोकैब के लिए हैं, और कॉलिंस डिक्शनरी है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मेन चीज है आपका कम्युनिकेशन, आप कितना, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे हैं इंडिया के, लेकिन फियर फैक्टर क्या रहता है, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम वो चीजें बता नहीं पाते। क्योंकि पहली चीज आपकी, जब भी आप कहीं बैठेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, ठीक है? तो पहला चीज आपका परसेंटेज, सेकंड कम्युनिकेशन। तीसरे हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, क्या क्या चीजें हमें जरूरत हो जाती हैं। तो आपकी जो डिग्रीज हैं, खास करके जितनी भी आपने जो भी आपके सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है, उनको आपको क्या करना है, उनको तो रखना ही है, जितने भी आप कर सकते हैं। अब ये फायदा हो चुका है, पहले ये था यूरोप में, क्या अगर आप फाइनल ईयर में नहीं थे शायद, तो आप नहीं कैपेबल थे, नहीं, आपको पूरा कंप्लीट करना होता था कोर्स। लेकिन अब ये है कि अब आप फाइनल ईयर में है, लाइक 6 सेमेस्टर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी स्कॉलरशिप ये अलाउ करती हैं, ठीक है? मेरी वाली स्कॉलरशिप में आ, देखा जाए तो वो ज्यादातर अलाउ ये करते हैं कि आपका फाइनल हो पूरा कोर्स, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट हो, मतलब आपकी जो डिग्री है वो अवॉर्डेड हो, वो उस बेस पे जज करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, लेकिन आप भरना शुरू करें, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भरेंगे, आपके साथ बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है? क्योंकि फॉर्म्स बड़े होते हैं, और बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हर बार फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो आप, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसमें
जो भी आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ जो भी आपका रहा एरर हुए हैं, वो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप यूरोप के लिए सोचें तो आपके पास 1 साल का वक्त होता है, इससे पहले सोचना शुरू कर दीजिए। अपना परसेंटेज अच्छी करिए, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, और अपना मोटिवेशन लेटर इज सो इम्पोर्टेंट। अब मोटिवेशन लेटर है क्या? मोटिवेशन लेटर का मतलब होता है कि जो भी लेटर जो आप मतलब किसी चीज के, क्योंकि आप एक तरीके से ग्राहक समझिए अपने, कोई चीज आप लेने जा रहे हैं वो भी फ्री फंडेड है आपके लिए, तो आपको क्यों दे? आपको मोटिवेट दिखाना है कि आई एम सच अ स्टूडेंट, कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं। स्किल्स, स्किल्स में ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी लिखते हैं, जो आपको आता है जनरली वो लिखें आप। क्योंकि जो आपका सीवी होता है वो आपकी एक प्रोफाइल दिखाता है, और वो हर चीज देख रहे होते हैं। उनके पास एक पेन पेपर होगा जिसमें आपकी चीजें मेंशन होंगी कि आपने पढ़ा क्या है, आपने लिखा क्या है। उनके पास सिलेबस होगा आपका एग्जैक्टली, तो वो आपसे क्वेश्चन भी उस तरीके से पुटअप करेंगे। ठीक है। तो उसमें बिल्कुल ये ना सोचें कि मुझे 4 चीजें आती हैं और मुझे ये नहीं आता और मैं कहीं से भी आप लेकर लिख लें, तो वो चीजें परेशानी होंगी आपके लिए। कि वो जो चीजें लेते हैं वो सारी चीजें उनके पास होंगी, पूरा आपका डेटा होता है उनके पास ऑनलाइन, वो हर चीज आपको देख सकते हैं। ठीक है। इवन आप यहाँ पर इंटर्नशिप भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो भी आप सीवी लिखते हैं वो आपकी हर चीज की ऑब्जर्व देखते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये करा था और आपने लिखा दिया, तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। तो सीखने की कोशिश करें, और जितना भी सीख लिया उसको लिखना शुरू करें कि आपने सीखा क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बायो बैकग्राउंड से है तो उसने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीखा है, या डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन सीखा है, या आपने फॉर एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी ही सीखी है, तो उसे सीखने की अच्छी तरीके से कोशिश करें। उसकी थ्योरी देखें, एप्लीकेशन देखें, और वो क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो वहीं से शुरू होंगे। छोटी छोटी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं वो। ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजी है या बहुत ज्यादा हार्ड है। मेन चीज है आप कितने ज्यादा कैलिबर हैं, कितना ज्यादा आप कर सकते हैं उन चीजों के लिए। ठीक है। तो मोटिवेशन में क्या होगा, आपको अपना एंथुसियाज्म दिखाना है, अपनी चीजों को बताना है कि क्या क्या आपको आपको आता है, और आपको वो क्यों लें, क्यों आप ये स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट है, आप क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये सारी चीजें लिखनी है। मोटिवेशन जो होता है खास करके 1 से 1.5 पेज का होता है। ठीक है। उसमें आपकी सारी चीजें लिखी होंगी कि आपने पढ़ा क्या है, आपने 12th कहाँ से करी है, अपनी 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे, उसके बाद आपने क्या क्या सीखा है, कौन कौन से स्किल्स आते हैं, और लास्ट में ये होगा कि जो स्कॉलरशिप आप फिल करना चाह रहे हैं वो क्यों क्यों जरूरी है। ठीक है। आपका एम होना चाहिए कि क्यों चाहिए आपको। ठीक है। तो मोटिवेशन ये है कि आप उसको लिखना शुरू करें, क्योंकि मोटिवेशन लिखना, बच्चे सोचते हैं कि हम लास्ट के 1 महीने में लिख लेंगे या 15 दिन में लिख लेंगे, 1 पेज ही तो लिखना है, लेकिन नहीं, बहुत टाइम लगता है उसे लिखने में। क्योंकि जो क्वालिटीज ऑफ वर्ड है, जो आपकी क्या कहते हैं, जो एक पूरा जो कंक्लूजन है आपकी पूरी 3 साल का 4 साल का, वो उसमें होना चाहिए। ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कैसा कैची होना चाहिए, कि वो पढ़े तो उनको लगे कि हाँ ये बच्चा है, या फिर जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है इसमें कोई बात है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंडिया से बात करूं, आई थिंक मेरे टाइम में 10,000 फॉर्म थे स्कॉलरशिप के, यूजीसी के थ्रू 10 to 15,000 थे। और ये स्कॉलरशिप बढ़ती जा रही है जो फुली फंडेड है। वो हर बार क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, और सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब। आप सोच सकते हैं मेरे साथ जो बच्चे इंटरनेशनल हैं सारे, तो बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं उसमें, उनको भी मुश्किल होता है कि किन बच्चों को लें। तो सबसे पहला आपका वही फिर वो होता है, क्योंकि जो फिल्टर्स होंगे वो आपके परसेंटेज बेस पर होगा, आपका मोटिवेशन होगा। ये 2 चीजें हो गई। आपका जो सीवी होगा, सीवी बनाने की कोशिश करें आप अभी से, और उसमें होगा यूरोपास सीवी। जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो ज्यादातर हमारा सीवी वैसा रहता है, लेकिन यहाँ के लोग यूरोपास सीवी देते हैं, और वो ऑनलाइन बना सकते हैं आप अपना आईडी बनाइए, उस पर आप रजिस्टर करिए, और यूरोपास सीवी में फॉर्मेट होते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से, वो बहुत सारी चीजें दिखाता है, और आप फिल करेंगे तो वो ईजी होता है बनाना। और यहाँ पर ज्यादातर वही चलता है, यूरोपास। ठीक है। जब आपकी इसी बीच में आप क्या जब आप अप्लाई करें फॉर्म्स की, इनकी आप सबसे पहले चीज ये है कि आपको किस कंट्री जाना है, क्योंकि यूरोप काफी बड़ा है। अगर आप इटली है, जर्मन है, मैं जैसे अभी हंगरी में हूँ, बुदाम मेरा मेन कैंपस है। ठीक है। तो पहले आप ये सोच रहे हैं आपको कहाँ कहाँ बनना है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, या उनका टाइम भी देखें कि किस टाइम में वो चीजें निकलती हैं। ज्यादातर जो एक्टिव होती है स्कॉलरशिप वो नवंबर से शुरू हो जाती हैं। दिसंबर आपका क्या रहते हैं, एक इंपॉर्टेंट मंथ है फिल करने का फॉर्म का, एप्लीकेशन उस टाइम रहती है, और जनवरी तक लास्ट हो जाती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप भी होती हैं जो डायरेक्टली फिल करी जाती हैं, ज्यादातर फॉर्म्स फ्री होते हैं आपके, नॉन पेड होंगे। जो कुछ स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपको यूजीसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, और यूजीसी भी क्या करती है, एक तरीके की जो आपकी गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट कर रही होती है उसके साथ। तो 2 चीजें हो जाती हैं। जैसे मेरे केस में यही था कि सबसे पहले यूजीसी आपको फाइनलाइज करती है, और आपको फॉर्म्स भर के वहां भेजने होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, अपनी एक लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो टेम्पस फाउंडेशन जो यहाँ के लिए काम जो उसके बाद यहाँ के लिए जो स्टिपेंडियम हंगेरिकम है वो क्या करती है, स्कॉलरशिप फिर आपको क्या कर देखती है, फिर वो आपको मेल करेगी कि आपके फॉर्म्स मिले, आप पास हैं या फेल हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। लॉन्ग ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है।
जब आप फॉर्म भर लेंगे दिसंबर में, जनवरी में आपको जो भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर यूजीसी को भेजना है नहीं भेजना है वो है, फरवरी आपका थोड़ा बहुत ही ज्यादा काम सा जाएगा उसमें। इंसान बहुत ज्यादा रहता है कि रिजेक्शन है या किस तरह एक्सेप्टेंस मिलेगा मुझे। मार्च आपका जो होता है वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट के ऊपर हो जाता है कि फॉर्म्स जो आपने भरे हैं उसका क्या होगा। इसी बीच में आपको ये याद रखना, यूनिवर्सिटी तो सर्च करनी है, उसके बाद आपको कोर्स भी देखने हैं, किस कोर्स में आप अप्लाई करते हैं। फुली फंडेड चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी है अब्रॉड की उसमें बहुत सारे मोड हैं। आप फुली फंडेड चाहते हैं, पार्शियली फंडेड है आपको, ठीक है, या आपको डिग्री लेनी है, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है आपका, ठीक है, या लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है आपकी, किस तरीके के कोर्सेज आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे, तो मार्च आपका आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए। अप्रैल में जो होगा, अप्रैल में आपके इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं। तो जो फेब और मार्च का जो पीरियड होता है, इस बीच में आप अपनी मतलब जो भी है, जो भी आप जिस कोर्स के लिए भर रहे हैं उससे रिलेटेड पढ़ना शुरू करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, अगर मैंने बायोटेक में भरा था तो मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझे पढ़नी है, सेल बायोलॉजी मुझे पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है मुझे, और रिलेटेड टू जो मेरा जो भी मैंने उनको सब्जेक्ट्स दिए थे उससे रिलेटेड मुझे पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो जो भी कोर्स है आप उसका एक तरीके से पैराग्राफ बना लेंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, खुद को भी मालूम होता है कि क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। या कोई जा चुका है आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि राइट एन ईमेल, आप उनको मेल भी लिख सकते हैं कि फॉर माय इंटरव्यू क्या सिलेबस है या क्या प्रोसीजर है, वो आपको पूरी उसमें क्या आपको पूरी आपको दे देंगे, सारी जितनी भी नॉलेज है वो आपको शेयर करते हैं सारे आइडियाज कि आपको किस तरीके से पढ़ना है या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो मेरे वाले केस में इंटरव्यूज जो होते हैं, इसमें टेस्ट भी होता है, कुछ जगह रिटन टेस्ट भी, और रिटन टेस्ट जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इन द सेंस ये नहीं कि आप बैठ के कर सकते हैं, आपको क्या करना है, वो फॉर्म का एक टाइमिंग होती है, उसमें आपको उस बीच में आपको करना है। अगर उस बीच से आप नहीं कर पाते, सबमिट नहीं करते, तो वो आपका रिजेक्ट में लिखा जाएगा। तो आप, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनके बहुत डायरेक्ट होंगे, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज आंसर चाहिए होता है उनको, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना। और बिल्कुल पॉइंट टू द आंसर, जो भी वो पूछ रहे हो आपको पॉइंट टू द आंसर देना है, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, या जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टाइप की होंगी, जेनेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। या हो सकता है कुछ डायग्राम्स आपसे पूछ लें। मेरे वाले केस में उन्होंने लाइक डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही पार्ट था, उन्होंने वो पूछा था, तो वो डीएनए से रिलेटेड था कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है उस टाइम में, तो वो एक डायग्राम था, और वो अम, थोड़ा अलग सा था, कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए समझने में, बाद में वो लगा कि हाँ ये उस चीज से रिलेटेड है। तो तो उस टाइम में आपको बुक्स खोलनी पड़ेंगी। आप ये सोच लेते हैं फॉर्म भर लिया, मेरे क्रेडिट बहुत अच्छे हैं, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, बहुत सारे बच्चे हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर कमिंग ओवर देयर। और ये वाली स्कॉलरशिप जितनी भी होती है फुली फंडेड, उसमें बच्चे बहुत ही कम लेते हैं, तो याद रखिएगा। मेरी क्लास में सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल, ज्यादातर हंगेरियन है। तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज पे काम करना है, अपना कम्युनिकेशन, अपना मोटिवेशन लेटर, और अपनी परसेंटेज, खास करके अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जितना अच्छा आप कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो आपका भी टाइम है, फ्री टाइम, उस टाइम में आप ज्यादातर चीजों, वॉलेंटियरिंग जैसे चीजें हैं आप उसमें सीखें। आप सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करें अपनी मेहनत से, ठीक है। आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो भी आपकी हॉबीज हैं, आर्टिकल राइटिंग है, या जो भी आप करते हैं, आपकी गार्डनिंग है, जो भी आप जिस चीजों में हैं, आप उस तरीके से आप चीजें करना शुरू करें, और उसमें ये है कि सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। लाइक इन माई केस आई वॉज गुड इन लाइक इन इंग्लिश, और मुझे आर्टिकल का बड़ा शौक था, तो मुझे काफी सारे सर्टिफिकेट मिले। स्वच्छता पखवाड़ा, ये शायद उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता था, और अब मुझे मालूम नहीं। तो मैंने हमेशा पार्टिसिपेट करा ऐसे राइटिंग में, स्लोगन राइटिंग में, पोस्टर मेकिंग में। तो मुझे सेकंड भी मिला है, मुझे फर्स्ट भी मिला है, ठीक है। तो मुझे ये है कि उसका फायदा हुआ। वॉलंटियरिंग में मैं हमेशा रहा, चाहे वो सर सैयद डे हो, नॉर्मल हो, एनजीओज मैंने पकड़े। इवन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर, मैंने ट्यूशन टीचर में भी काम किया है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है रियाद जिद्दा में उस टाइम में। और मैंने अलबरकात भी ज्वाइन कर रखा था पार्ट टाइम एज अ बायोलॉजी टीचर 9th 10th के लिए। फिर मेरा थोड़ा अपग्रेड हुआ, तो 11th 12th को भी मैंने देखा, और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर है वहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको इसी वक्त में करनी है, ठीक है। और जो मेरा टाइम था, तो ऐसा नहीं है कि उस बीच में मैंने सिर्फ मस्ती करी है या पढ़ाई में ही, मैं हर चीज करने की कोशिश करी है, जितना ज्यादा आप अपने आप को वर्सेटाइल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन के साथ और चीजें भी देखते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि आप बुक बॉम हो, वो और चीजें भी चाहेंगे, आप मतलब फ्रेंडली भी हो, आप बहुत सारी चीजों में भी हो, क्योंकि आप दूसरे कल्चर में आ रहे हैं, ठीक है, और आप एक इंटरनेशनल एक क्या लेकर आ रहे हैं, एक टैगलाइन लेकर आ रहे हैं अपने लिए। तो आपको सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुकिंग का भी शौक था, तो मैंने कुकिंग में भी पार्टिसिपेट करा, एंड आई गॉट अवार्डेड द सेकंड प्राइज। एंड
ये बहुत सारी इन चीज़ों में है, आर्टिकल हैं यहाँ पर मैंने भी लिखे हैं, लिखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ वो हो जाए। और और जितना अच्छा आपका स्पीकिंग होगा उतना ज़्यादा वो आपको फ्रंट लाइन में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि आप जूनियर और सीनियर का इतना वो नहीं रहता, जैसे इनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे पीपीटी प्रेजेंटेशन हो तो आपको साथ में रखेंगे, आपको भी बोलना है, चाहे आप 5 मिनट बोलें आपको बोलना होगा। तो मिला जुला के मैं यही बोलूंगा इन द लास्ट के, मतलब जितना ज्यादा आप ये जुबान अच्छे तरीका कर सकते हैं, लफ्जी तौर पर किस अदायगी से आपको बोलना है, ये चीजें होनी चाहिए। लाइक इंग्लिश हर कोई बोलता है, ठीक है। बोलने का एक क्या होता है, हम लोगों के फिल्टर्स होते हैं, हम हर किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं, थॉटफुल होता है उनका, ठीक है, स्पीचेस भी बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन है, आपकी ग्रैब ऑफ द वॉइस कैसी है, कहाँ अप्स है, कहाँ डाउन है, आपको लेकर जाना है। अ, ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब जब आप बोलें तो वो आपसे कनेक्ट कर पाए, वो आपको सुन सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये नहीं हो कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट आंसर यस नो में दे दिया, या फिर इतना ज्यादा तोड़ के दिया कि वो सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो इस तरीके का है, होना चाहिए आपका भी। और ये किस तरीके से आएगा, आप बहुत सारी चैट शोज आप देख सकते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट लाइक नॉर्मली इन अ वे। और जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं अपना वक्त, अभी भी वक्त है, ज्यादा हार्ड नहीं रहा पहले जैसा, बहुत इजी हो चुका है। क्योंकि अब आइल्स वगैरह के भी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, यूरोप के लिए मैं बोलूंगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम का जिनके पास, एएमयू से मैं हूँ तो मेरा मोड ऑफ रिटन एग्जाम भी ये था, इंग्लिश था और मुझे आती थी, तो वहां से आप रजिस्ट्रार ऑफिस से जाके अपना एक कंडक्ट भी बनवा सकते हैं, लाइक कि मुझे इंग्लिश आती है और मेरा जो मोड ऑफ लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो ये है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आइल्स दिया था 2017 में, हाँ, जब मैं तो उस टाइम में मेरा लाइक 6.5 था। तो उस टाइम में ये था कि मेरे पास, मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। और लेकिन आप अगर आप यूके भरेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया भरते हैं, स्विट्जरलैंड भरते हैं, तो उसमें आपकी जरूरत रहती है, यूके वाले भी मांगते हैं आइल्स। या फिर कभी कभी होता है कि वो आपसे बात करके ही पता लगा लेंगे कि आप है कैसा। लेकिन यूएसए के लिए अगर आप अप्लाई करें तो वहाँ पे टॉफल चलता है, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो जीआरई आपको देना होगा। तो इस वक्त में आप ये है कि अगर आप 2 महीने तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन है, आईडीपी में बोलूंगा, इंडिया में आईडीपी एजुकेशन बहुत ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है, खास करके आइल्स के लिए। आप जाइए, मिलिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, वो फ्री विजिटिंग करते हैं लोग, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। वो आपके सारे प्रोफाइल को चेक करेंगे कि आपने पढ़ा क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन के कोर्सेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई कर सकते हैं। और अ, आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। और इसी बीच में आप आइल्स वगैरह के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, 2 महीने के लिए वो लोग कराते हैं, आपका मोटिवेशन लिखने का तरीका आपको सिखाएंगे, आपका इंटरव्यूज की तैयारी कराएंगे। लेकिन अब ये है कि आप बुक्स वगैरह ले लीजिए ऑनलाइन, अभी पढ़ना शुरू करें। अगर आप आधा घंटा भी निकाल रहे हैं अपने लिए दिन में, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन सबको आता है, बस आपको सीखना है, उसको ग्रैब करना है, किस तरीके से बोलना है, बस सबको पता है। क्योंकि इंग्लिश क्या एक वाइडल लैंग्वेज है, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं आती, हम समझ नहीं पाते। हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन का क्या है, स्पीकिंग का है, क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है, और वही हम बोलते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। तो वो हमारा क्या है, जुबान पर नहीं है। लाइक वी आर नॉट सो इंस्टेंट टू कम्युनिकेट। बस यही फर्क होता है, और जितना जल्दी आप उस पर ओवरकम कर लेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना उतना अच्छा हो जाएगा। इसी बीच में जब आप प्रोफाइल चेक कर रहे हो तो आप ये देखेंगे जो कोर्सेज हैं खास करके, वो ऐसे होने चाहिए थोड़े, मतलब यहाँ आएंगे तो आपको कोर्सेज में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो हम कोर्सेज पढ़ते हैं वो थोड़े अलग से जाते हैं यहाँ से। तो आप कोर्सेज हैं उसमें ये है कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं तो 3-4 फिल्टर कर लीजिए, उसमें फिर कोर्सेज देखिए, उसमें जो आपको कनेक्टेड लगता है ज्यादा, ये है। क्योंकि जो आप स्ट्रीम पकड़ेंगे वो आपसे पूछेंगे कि किस कोर्स में आप क्यों आना चाहते हैं, जबकि आपका कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉटनी था लाइफ साइंस में, और मैंने स्विच करा है एग्रीकल्चर बायोटेक में। तो उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर बायोटेक का मतलब अलग है, मैंने पढ़ा है, लेकिन बायोटेक आपका कोर नहीं था। तो आपको रीजन देना होगा क्यों आप आना चाहते हैं, या क्या चीज़ आप करना चाहेंगे उसमें। लाइक मेरे केस में यह था, मैंने स्ट्रेस फिजियो पढ़ी थी, और स्ट्रेस फिजियो में मैंने काम भी किया था, मेरे एक प्रोफेसर थे मसरूर अहमद खान। और फिर मैंने स्विच यहाँ पे भी स्ट्रेस फिजियो में ही दिया है इस बार। तो मेरा फाइनल जो है वो शायद ये है कि थीसिस मेरी उसी में शुरू होने वाली है। तो तो जो आपके कोर्सेज हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, काइंड ऑफ इंटरेस्ट, कि आप क्यों जाना चाहते हैं, पहले से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आप इस कोर्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। वो आपके आइडियाज भी चेक करते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों आपने चुना, क्या क्या रीजन थे, व्हाई यू सिलेक्टेड ओनली दिस कोर्स, देयर आर सो मेनी कोर्स, ठीक है।
इसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह सारे हो जाएंगे। आप इसी बीच में आपका वो बात की बात है, फिर और लंबा प्रोसेस है कि आपको वो वीजा है, वो सारी चीजें हैं, ये चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान रखना है, टाइमिंग क्या है, कब एंड हो रहा है, ये चीजें, अपना मोटिवेशन तैयार रखना है, अपने क्रेडिट्स, अपने कोर्स टाइम पे होने चाहिए, ठीक है। डिग्री अगर आपको मिल जाती है अच्छी चीज है, वरना आपको डिग्री ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस से वो भी ले सकते हैं। क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स फॉर्म में आप लगा सकते हैं कि अभी वो अवेटेड में है, और वो मिल जाएगी बाद में। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाने होते हैं। आप हेल्थ सर्टिफिकेट में ही आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराने होंगे, सारे HIV जितनी भी ये बीमारी हैं, आपको एक्सरेज भी कराने हैं, ये सारी चीजें वो फॉर्म के साथ ही भरी जाती हैं। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखें कि आपको ये काम भी करा लेने हैं। जो खास करके MU के लोग हैं उनको इजी पता है कि आप JNMC जाते हैं, पहले हेल्थ सेंटर जाएंगे, वहां से आप फॉर्म लेते हैं, फिल करते हैं, और फिर JNMC में जाते हैं। तो 1 हफ्ता मिनिमम आपका लग जाता है जल्दी में भी। तो ये चीजें आपको बिल्कुल, मतलब टाइम टेबल आपका होना चाहिए, लाइक आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन फॉर्म में काम करें, कब आपको फॉर्म भरना है, कब मोटिवेशन लिखना है, आपके कोर्सेज हैं, उस बीच में आपको सिलेबस भी याद रखना है कि क्या क्या चीजें मुझे आती हैं, क्यों मैं चूज कर रहा हूँ ये चीजें। और अभी आपको फिल्टर्स भी करने हैं कि कौन कौन से कोर्सेज किस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, ठीक है। यूरोप का बहुत ज्यादा ईजी है। यूरोप का ये फायदा है कि अगर आप यूरोप आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हंगरी में हूँ, मेरे पास शेंजन वीजा है, तो मैं यहाँ की 28 कंट्रीज में कहीं भी स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप मेरी वाली स्टिपेंडियम हंगरी का में इरेस्मस मुंडस, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और ये स्कॉलरशिप खास करके मास्टर्स बच्चों के लिए होती है, और इसमें ये होता है कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक सेमेस्टर वाइज भी आप पढ़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर आपने बुदा में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर आप फ्रांस में पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर आपने यहाँ कंप्लीट करा, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे, वो अब बियाना चले गए, कुछ फ्रांस चले गए, ठीक है, कुछ इटली हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इरेस्मस मुंडस बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। एक है फाओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली है। तो ये खास करके जो फूड टेक्नोलॉजीज में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। फूड साइंस से रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि इस सेक्शन में बच्चे कौन कौन बैठे हुए हैं या किस तरीके, क्योंकि इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, मैथ वाले भी हैं, BME यहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। एल्टे है जेनेटिक्स वगैरह में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वो भी अप्लाई करते हैं। और आपकी स्कॉलरशिप है, बहुत और भी स्कॉलरशिप्स हैं। जब आप जो, अगर बाय द वे मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा उनकी लिस्ट के कहाँ कहाँ जा सकते हैं। USA में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप के साथ साथ। USA का ये है कि आपको सबसे पहले टॉयफिल देना होगा, या तो आइल्स आपका टॉयफिल क्वालिफाई होना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका परसेंटाइल मांगते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका कम्युनिकेशन, जो भी आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, उसका कितना है। तो उस बेस पे वो आपको देखते हैं। USA के ज्यादातर फॉर्म्स आपके पेड होंगे, आपको पे करना होगा लाइक 3000 4000 समथिंग लाइक दैट। और सेकंड आइट्स, आइट्स का ये तैयारी आप करें, और फीस ये थोड़ी सी महंगी लगती है, क्योंकि 14-15 thousand आपको पे करना होता है, और आपकी डेट्स आपकी ऑनलाइन होती हैं। आइट्स का ये भी है कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। बीच में, अब मुझे इस बार का नहीं पता, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन भी था, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और वरना वो पर्सनली लिया जाता है। आइट्स में ये कि 4 सेक्शन होंगे, आपका स्पीकिंग है, राइटिंग है, और फिर फाइनल आपका इंटरव्यू रहता है। लिसनिंग भी आता है आपका, और फाइनल आपका जो वो पर्सनली आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, कि हाउ यू कम्युनिकेट। तो उसमें आपके कार्ड्स होंगे, उसमें होगा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, लाइक दिस। तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो वो इतना, वो ही आप जितना ज्यादा आप इतना ओवरकम कर सकते हैं, जितना आप फ्रेंडली हो सकते हैं अपनी जुबान को लेकर, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और USA में अभी एक मेरे फ्रेंड गए हैं लास्ट 15 days बिफोर, उन्होंने यूरोप के लिए अप्लाई करा था, उनका नहीं हुआ। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत टाइम उन्होंने करा, लेकिन उनको फाइनली न्यूयॉर्क में अब मिल गई है PhD, स्कूटनी यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने पूछा भी किस तरीके से आपने अप्लाई करा, उन्होंने बोला कि मैंने GR सबसे पहले टॉफल दिया, और टॉफल के बाद अपने फॉर्म्स वगैरह उन्होंने अप्लाई करे स्कॉलरशिप्स के साथ। और जो स्कॉलरशिप मिली उनको, वो स्कूटनी न्यूयॉर्क में मिली है, और ये है कि उनका फुली फंडेड है ये। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप आइल्स वगैरह पहले तैयारी कर लें, और डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप USA के लिए कैपेबल हैं, ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत सारे मीडियम है, मोड है, बस ये है आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, एंड बहुत सारे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा, ऑल ओवर इंटरनेशनल। इंडिया से इतने बच्चे हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको भी सिलेक्ट करना UGC को। और सब ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साउथ के काफी बच्चे अच्छी अच्छी जगह से आते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। दे दे ग्रैब द लैंग्वेज, बहुत अच्छे तरीके से बात करने का तरीका है उनका। और उनकी थोड़ा, ये है कि उनकी लाइफ स्टाइल में भी है, कहीं वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं साउथ में ज्यादातर, तो उनका एक ये हो जाता है। यही सारी चीजें हैं। और
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। जी, मैं पार्टिसिपेंट्स आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन पुट अप करें। या तो आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्टली पूछ सकते हैं प्लीज। और हाँ फजल, तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन जो मेरा लैक रहा हो, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन, आई नेवर डिड इट जी। बिफोर। भाई मेरी तरफ से तो क्वेश्चन तो नहीं है, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। सो बहुत मच। अच्छा आपने लीड करा सेशन, बहुत अच्छा। और वो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इंग्लिश का रजिस्ट्रार ऑफिस में बन जाता है एकेडमिक सेक्शन में। हम्म। हमने भी बनवाया था, काफी जगह अप्लाई करा था। जी। हाँ जी। मैंने वेल्स यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई, सबसे पहले मैंने शुरू करा था बैचलर से वेल्स यूनिवर्सिटी में। हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया कि नाउ डेज लाइक एवरीबडी इज टू कनेक्टेड, यू नो। तो अब ज्यादातर आप दिल्ली वगैरह में आप फेयर में भी जा सकते हैं, एजुकेशनल फेयर लगते हैं, उसमें बाहर की कंट्रीज के लोग आते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ। और वो आपको बताते हैं कि हम आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर जाएं, वो आपको बताएंगे कि कैपेबल कैसे हैं, या कितनी फीस है, क्या ट्यूशन फीस है। तो मुझे ज्यादा ये अच्छा लगा कि आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, ये है। पर वही है कि हम्म। मतलब मेन चीज द थिंग इज कम्युनिकेशन। अगर जितना आप फ्लुएंटली पकड़ सकते हैं उनको, क्योंकि आपको फिर वो, क्योंकि वो हिंदी वगैरह नहीं बोलेंगे आपसे, वो ज्यादातर बाहर के लोग होते हैं अब्रॉड के। तो एजुकेशन फेयर बहुत अच्छा है। आईडीपी आप जा जी। सकते हैं, यूरोप की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो वहां पे कनेक्ट करते हैं बच्चों को, बताते हैं कि आप कौन 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 सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह के कोर्सेज आए हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। और आजकल एज्यू हब करके एक वो चला है, शायद आपने देखा हो। उसमें ये है कि जो बच्चे अपने पैसों पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उनकी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई एक सा नहीं है, वी कैन नॉट फीड इन अ सेम प्लेट। बहुत से लोग होंगे जो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो एज्यू हब एक तरीके का प्रोग्राम है, उन्होंने ये कराया कि एक साल आप इंडिया में रह के पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 50% आप अपनी स्कॉलरशिप सेव कर सकते हैं, और एक साल आप बाहर जाके कर सकते हैं। तो आपका जो कोर्स है वो आपका एक तरीके से बाई सेशनल, एक कंट्री यहाँ एक वहाँ, तो एक सेशन आप यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे और एक सेशन आप बाहर जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप इस पे भी सर्च कर सकते हैं, एचू हब करके है, क्योंकि मैंने इससे पहले एजी कनेक्ट हब हुआ तो था। मेरे ख्याल से अलीगढ़ में भी है एक इनका ऑफिस। हाँ एक मिनट, और मेरे पास एक, मुझे वक्त दो, क्योंकि मेरे पास अभी मेल आया हुआ है, और उसमें है वो, क्योंकि मैं कनेक्ट हुआ था एक बार अपने कजिन के लिए, उसने बोला था, तो मैंने बात करी थी उनसे। हाँ सॉरी, अपग्रेड करके है, अपग्रेड और एडमिट कार्ड। ओके। ओके। तो आप चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, इनके मेल्स वगैरह आपको मिलेंगे, आप तो डायरेक्टली मुझे इनको आप मेल करें। लिंक दे दीजिएगा इनका, या हाँ मैं भेज इनसे दूंगा। कनेक्ट करने का कोई ईमेल हो इनका। एडमिट कार्ड है, और ये अपग्रेड है, मैं आपको लिंक्स भेजूंगा। ये चीजें भी आजकल बहुत ज्यादा ओके। शुरू हो गई हैं। तो ऑनलाइन डिग्रीज ओके। भी आप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन फुली नहीं। आपको मतलब एक साल के लिए आप सेव कर सकते हैं अपने पैसे, कि आप इंडिया में रहें, ऑनलाइन क्लासेस करें, ये है। पर ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या होगी, फिर वही प्रॉब्लम शुरू होती है, टाइमिंग इश्यूज। लाइक मेरे यहाँ भी तो शाम भी नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह पे भी चेहरे पे सूरज ही पड़ रहा है। तो ये है। तो जी। बस आपको ये है कि फिर उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। जी। मैं ये कहूंगा, जितने भी बच्चे, मैं उनके मोटिवेट करूंगा कि प्लीज डू कम, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। और बहुत ही खूबसूरत है लाइफ स्टाइल। आप जहां भी जाएं, मैं ये कहूंगा बहुत ही ज्यादा आप पॉजिटिव थॉट्स सीखेंगे यहाँ पे, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना कैरियर, और अपनी रोज के मसले, क्योंकि वो आपको एक तरीके से अपलिफ्ट करते हैं। आप डिपेंडेंट, पूरे फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने ऊपर। आपको खाना पकाना भी आएगा, आपको हाउ टू ग्रैब द कॉफी, हाउ टू डू टॉक, हाउ टू वॉक, how to run, and how to like connect the people in with different religion, and how to be thoughtful in the same way. So मैंने भी एक पोएम लिखी थी द यूरोप करके, मैं भी काम कर रहा हूँ उस पे, कि मुझे यूरोप ने क्या क्या सिखाया, कि मैं किस किस तरीके से मैंने चीजें सीखी हैं, लाइक अप्स एंड डाउन, फॉलिंग अपार्ट लाइक दिस नो। मैंने खूबसूरत चीजें भी सीखी हैं, मैंने इमोशनल भी सीखा है। तो पढ़ाई के साथ आपको बहुत सारा एक सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये चीजें। और डे बाय डे नहीं, आप। इस बात की तो मैं खुद दलील दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, क्योंकि Can we इमरान भाई। drop a question in chat box? हम्म, ओके ओके, यू मे आस्क द क्वेश्चन। क्या कंटिन्यू। डू बैकलॉग मैटर इन अब्रॉड एप्लीकेशंस? बैकलॉग मैटर्स, बैकलॉग का ये है कि अगर आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई है तो मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको उसमें आंसर देना पड़ेगा। हाँ अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, उसमें लिखा नहीं आता आई थिंक डिग्री में ऐसा कुछ कि आपका बैकलॉग है या नहीं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपका सेमेस्टर में अगर वो शो हो रहा है तो मुश्किल होगा फॉर्म भरना। ये No, कैसे मालूम हो actually, कि एडमिशन का पोर्टल कब ओपन होता है?
हाँ, ये चीज ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप, मैंने पहले ही कहा कि आपको पूरा मेक योर फ्रेम कि आप कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी स्टिपेंडियम के बारे में बता सकता हूँ, मैं एरास्मस मुंडस के बारे में बता सकता हूँ आपको। एक और है प्लांट करके, उसमें मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट थे, अलग अलग स्कॉलरशिप्स के हैं, फाव वाले हैं मेरे साथ। तो उन चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्कॉलरशिप शुरू होती हैं, खास करके अगर आप बाहर आते हैं, तो ये लोग दो तरीके से लेते हैं। एक लेते हैं आपकी जनवरी में बच्चों को, और एक लेते हैं आपके इधर सितंबर में। तो इसका मतलब जनवरी में जो बच्चे आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से आएंगे, उनके फॉर्म ज्यादातर इधर अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं, और इधर वाले जो बच्चे होते हैं उनके दिसंबर से शुरू हो जाते हैं फॉर्म भरने। तो आप इन दो फेज में आप देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको दो बार में लिखेंगे। प्लीज किसी किसी और को का कोई सवाल? किसी को कोई चीज पूछनी हो या कोई चीज आपके जहन में हो, आप पूछ सकते हैं। आपका कोई भी छोटे से छोटा माइनर क्वेश्चन भी हो सकता है। आप ये ना सोचें कि मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे मालूम है। इरेस्मस मंडस के बारे में पूछ रहे हैं, इरेस्मस मंडस को ब्रीफली कवर कर इरास्मस दीजिए। मुंडस इरास्मस मुंडस एक यूरोप की स्कॉलरशिप है, काफी प्यारी। अ, एक मिनट। तो इरास्मस मुंडस में ये है कि जो बच्चे जाते हैं खास करके, वो ऐसे होते हैं कि उनका एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ, मेरा इरास्मस नहीं है, मुझे पूरी अपनी जो डिग्री है वो यहीं कंप्लीट करनी है, ठीक है। इरास्मस मुंडस में ये है कि आपके ऊपर जहाँ भी आप हैं यूरोप के अंदर, आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक जगह में आप इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं हर सेमेस्टर के हिसाब से या अपना ईयर वाइज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो बच्चे लाइक मेरे साथ जो स्टूडेंट आए, तो उन्होंने पहला साल मेरे साथ कंप्लीट करा। उसके बाद वो अपने सेकंड ईयर में वो लोग, कुछ लोग गयाना चले गए, कुछ फ्रांस चले गए। तो मतलब ये समझिए, अपना एकेडमिक आपका जो एक साल कहीं रहता है, और आपका जो थीसिस वर्क है वो आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ चूज कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है एरास्मस मुंडस। तो आपके पास काफी अच्छी एक तरीके से ये हो जाती है कि आपकी डुअल डिग्री होती है दो जगह की। तो पर ये है कि वो थोड़ी सी लिटिल बिट हार्ड है, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, मैं ये भी कहूंगा। आपको पैसे भी काफी अच्छे देते हैं वो लोग। डू 3 years बैचलर डिग्री स्कॉलरशिप के स्टूडेंट। बाद वर्क करने का कोई स्कोप है? या स्कॉलरशिप के साथ ये है कि वर्क परमिट आपको रहता है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर नहीं करा, लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूँ करने की, और बच्चे करते हैं। आपको जैसे ही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, आपको रेसिडेंस कार्ड, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, सारी चीजें, आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाएगा। उसके फौरन बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब इजीली मिलती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैफेटेरिया हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स के लिए काफी जॉब है, ठीक है। आपकी KFC, बर्गर किंग, इसमें पार्ट टाइम जॉब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सेकंड चीज कैसे इजीली हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है ज्यादातर, ये पूरा मतलब यहाँ का है। आपको मंडे टू फ्राइडे, अब वो आपको बिजी रखेंगे, 5 दिन क्लासेस होती हैं और 2 दिन आपका ऑफ रहता है। तो 2 दिन आप मतलब 8 आवर्स भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये है कि काफी कुछ और पर आवर आपको यहाँ सैलरी मिलती है। तो आपके 16 आवर्स हो जाते हैं। तो ये है, आप सपोर्ट कर सकते हैं खुद को, अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत। 3 इयर्स बैचलर स्टूडेंट एलिजिबल हैं? 3 years बैचलर, मतलब आपने कंप्लीट करा है या 3 साल की डिग्री है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप मतलब हाँ, थर्ड ईयर। उसके हिसाब से ही बता दीजिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैचलर 3 साल का था, लाइक इन माय केस, तो वो एप्लीकेबल था, ठीक है। अब शायद 4 साल का हो गया। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हो, वो तो 4 हैं, तो आप कैपेबल होते हैं, क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर में तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, आप लगा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू आर एप्लीकेबल। 3 year डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले फिर आपको देखना होगा उसमें कि वो 3+1 मांग रहा है या खाली 3 मांग रहा है। मैंने जब फॉर्म फिल करा था तो मेरा 3 था, क्योंकि कंट्रीज के भी रूल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे इंडिया में भी है कि वो डिग्रीज को चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पर। लेकिन मेरे साथ जितने ज्यादातर आए, वो लोग 3+3 वाले हैं। So तो during आप the मतलब, scholarship process, do you spend your single penny? नो, नेवर, No. For visa and all, it is fully covered. नथिंग। हाँ, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जो मुझे स्कॉलरशिप मिली, उसके सारे फॉर्म्स फ्री थे, सारी चीजें फ्री थी, इंटरव्यूज फ्री थे, स्काइप पे हुए थे मेरे इंटरव्यूज। और क्या कहते हैं, वीजा मेरा फ्री था, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर के थे वो भी ज्यादातर फ्री थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थे या यहाँ के थे। कुछ चीजों में आपको देखो पैसे खर्च करने होते हैं, आने जाने का किराया आपका होता है, खाना पीना है। हाँ, टिकट्स रियम्बर्समेंट होता है, मतलब आपको पे करना है, वो बाद में आपको पे हो जाता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, ठीक है।
और जितने मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ जितने सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो सारे फ्री हैं। मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट फ्री है, ठीक है, ये सारी चीजें फ्री हैं, आपकी ट्यूशन फी, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे आर पेइंग यू फॉर लाइक फॉर लिविंग और फॉर योर डॉर्मेट्री एंड एवरीथिंग, सो इट्स जस्ट अ फ्री, दैट्स व्हाई वी से फुली फंडेड। ओके, पार्टिसिपेंट्स की इमरान भाई ये दरखास्त है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है स्कॉलरशिप की बता दी जाए। तो मैं जी। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपसे कहूंगा कि आप हम्म। मुझे शेयर कर दिया करें ऐसी इंफॉर्मेशन, तो मैं बिल्कुल। ग्रुप पे अपडेट कर दिया करूंगा सबको। जी, मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक ईमेल है, उसमें आप लिंक कर सकते हैं, रजिस्टर करिए, डू रजिस्टर योरसेल्फ, और आपको बहुत सारे लिंक आते हैं। हाँ, एक बड़ी खूबसूरत आपने स्कॉलरशिप शुरू सुनी होगी, इंडिया जो एमयू के बच्चे हैं वो एसएसजीएस से भर सकते हैं। वो भी मतलब आपको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेटिव है एक तरीके से कि बाहर जाने के लिए। तो उसमें आपके आइल्स वगैरह के शायद वो पैसे वगैरह देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं बाहर के लिए। तो एसएसजीएस से हर साल शायद सर्दियों में निकलती है, मुझे ये नहीं पता उसका टाइम क्या है। मैंने भरा था पर आई वॉज फेल। आई गॉट अ बिग बिग ईमेल के बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी इन अ पॉजिटिव वे, बट आई गॉट फेल। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पास था, ठीक है। और ये भी मुझे सेकंड चांस में मिली थी। तो हमेशा डू पेशेंस, कीप पेशेंस एंड लाइक बी फोकस ऑन योर गुड वे, कि आप कितना खूबसूरत बन सकते हैं, लाइक अ कुकुन। कुकुन अपने आप को कितना बुरा बनाता है पहले, ठीक है, ही कवर हिज होल बॉडी एंड लाइक, एंड आफ्टर दैट उस कुकून के बाद आप देखते हैं खूबसूरत सी तितली जो हर कोई पकड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है भाई इसके गार्डन में आए, ये खूबसूरत है आपको। तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ को बनाना शुरू करें, क्योंकि हर्डल्स हैं, ऐसा नहीं है, फजल ने मुझे देखा है, क्रिटिसाइज भी होंगे आप लोग, खुद को भी आप अपने आप को ब्लेम करेंगे क्यों नहीं हो रहा, आप हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, बट बी पेशेंस। आपका मतलब ये है कि दिन शुरू अच्छे शुरू होते हैं, लेकिन वो टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो हमेशा ये नहीं आपने पहली बार में फॉर्म भरा, अरे भाई मेरा नहीं हुआ अब तो नहीं भरना, पता नहीं क्या बताया था ना, वो तो ऐसे बोल रहे थे बड़ा सिंपल है, ये तो भाई मेरे लिए परेशानी होगी। तो मेरे साथ बड़ी, मैंने मैनचेस्टर लाइक वेल्स भरा है, इंग्लैंड भरा है, और यहाँ भी मैंने 2-3 बार भरे, मिलान भरा है, इवन बहुत जगह मुझे मिला भी, लेकिन वही था कि कहीं फुली फंडेड नहीं है, कहीं स्कॉलरशिप ऐसी है, कहीं मुझे पसंद नहीं है, कहीं एकोमोडेशन नहीं मिल रहा, तो लॉट्स ऑफ थिंग, वो आप जब भरेंगे आपको चीजें एहसास होंगी। ओके, इमरान भाई जब आपने भरा था तो आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस था? हाँ, ये चीज मैं बड़ी अच्छी बोलूंगा, जो मेरा फ्रेंड गया है यूएसए, आप बिलीव कर सकते हैं, तो मैं यूरोप में हूँ, मैं अपने आप को अदना सी चीज बोलूंगा यूएसए के आगे। तो उसके पास भी कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। उसने मास्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से करी है, अपने एसजेड का ही था। तो उनके पास भी कोई रिसर्च नहीं, लेकिन उस बीच में वो उसमें पढ़ाते थे, बायजूस में, एज ए केमिस्ट्री टीचर। तो कोई नहीं, उन्होंने बस अपना टॉयफल दिया, उसके थ्रू वो हो गए। तो अगर पेपर पब्लिश हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आप के अंदर कोई चीज होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी लाइक कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इन अ ब्यूटीफुल वे, ये नहीं मुझे आता भी कुछ नहीं है मैं दिखाऊंगा भी पूरी अकड़, दैट शुड नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो आता है, जितना भी आता है, उसे आप कितना खूबसूरत तरीके से पेश कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने ये पढ़ा है, तो वो आपको आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। लेकिन आप पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, मास्टर्स तक कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि नहीं होते। पीएचडी में ये है कि अगर आप करना चाहिए कि जहां तक वो आपका कोई पेपर वर्क है या आपका कोई आर्टिकल है या कहीं आपका नाम आ जाए छोटा मोटा, तो वो ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। या फिर आपके पास ओके, आइट्स होती है। किस टाइप के सर्टिफिकेशंस आपके पास थे, और व्हाट वाज दैट वन थिंग यू वुड से यू गॉट सिलेक्टेड फॉर? देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट थे, कम से कम मेरे पास 150 सर्टिफिकेट्स हैं, मैं ये बोलूंगा, फ्रॉम माई स्कूल टू हेयर। मेरे पास सर्टिफिकेट्स मेरे बिहेवियर को लेकर भी हैं, मैं मिस्टर ओबीडियंट भी रहा हूँ और स्कूल टाइम से। मेरे पास मॉनिटर थे, मेरे पास वॉलंटियरिंग थे, मेरे पास एनजीओस के थे 3-4 जहाँ मैंने काम करा है, मैंने आर्टिकल राइटिंग में काम किया है, एज ए स्कूल टीचर मैंने काम किया है, ट्यूशन टीचर मैंने काम किया है, एंड मेरे पास स्टेट के ड्राइंग्स के भी थे, और खास करके मेरे पास इस तरीके के राइटिंग सेक्शन में ज्यादा मिले हैं, ये चीजें थी। तो सर्टिफिकेट्स वो आपके ऊपर है, आप मतलब किस तरीके से, मतलब यू शुड बी लाइक अकेडमिक के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए, ये। Walaikum assalam, Uwais. Currently, Uwais is in its fifth semester, a third year degree program of हम्म। graduation. So हम्म। he want to ask European fully funded scholarship. So what ओके। kind of preparation he should do or start so that हम्म। he can apply for the university in the next month? Do you have ओके। any suggestion for Uwais? हाँ, तो ओवेस किस कोर्स में, मतलब लाइक इन बायो और लाइक समथिंग, मतलब लाइफ साइंस या साइंस, कौन सा है इनका? अगर वो वॉइस में ही बोल दें ज्यादा इजी रहेगा मुझे। फिजिक्स, Physics. ओके। अच्छा, नेचुरल साइंस में आप।
ठीक है। तो आपका जो 5th सेमेस्टर में आप बिल्कुल कैपेबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म्स को। फॉर्म्स आने वाले हैं मेरे वाले, दिसंबर में शुरू होंगे। आप उनको भरें और उसमें पूरा टाइम होगा, मतलब देख सकते हैं पूरा महीना होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पासपोर्ट, हाँ आपका पासपोर्ट वगैरह भी बना लीजिए प्लीज़। ये भी मैं बोलूंगा कि इसके लिए अप्लाई करना शुरू करें, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर वो मांगते हैं आपके आईडी के लिए। ठीक है। तो अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, मुझे लग रहा है 5th चल रहा होगा, क्योंकि वो दिसंबर में फॉर्म आएगा, आपका कंप्लीट नहीं होता। तो 4th सेमेस्टर के आप वो ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लीजिए। ट्रांसक्रिप्ट आप निकलवाएंगे, वो स्लिप करती है 200 रुपीज़ की। अगर आप एएमयू में हैं, एसबीआई बैंक में जाइए और ले लीजिए, उसको सबमिट करिए, वो आपको दे देंगे ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या, एक तरीके से एक शीट होती है, उसमें आपके सारे सेमेस्टर्स के क्रेडिट लिखे होते हैं। उसमें सारे आपके क्रेडिट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके क्रेडिट्स नंबर्स लिखे होंगे, आपको क्या है आपकी पर्सन सीजीपीए क्या है, एसजीपीए क्या है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहली चीज ये करनी है। दूसरा, अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाए। तीसरी चीज है आपका डिक्लेरेशन। आप मतलब आपके ऊपर कोई क्राइम वगैरह ये वाली चीजें नहीं है अपना। ठीक है। मोरल सर्टिफिकेट जो है आपका, ये चीजें हैं आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट होना जरूरी है। मोटिवेशन लेटर, आप रेफरेंस भी ले सकते हैं टीचर्स के। ठीक है, अपने टीचर से बात करें कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे रिकमेंड करें कि आई एम अ गुड स्टूडेंट लाइक दिस। ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। तो वैसे कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल? राइट, शायद आपने सारे सवाल कवर कर दिए हैं। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इस बस ऑर्गेनाइजेशन को आपने कुछ वक्त नहीं। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बस मुझे आपका। बड़ी खुशी है इस चीज की कि मतलब मैं इस काबिल हो गया कि थोड़ा बहुत कहीं तो मैं मतलब सपोर्ट कर सकता हूँ। कहते हैं ना, तिनके को सहारा, लाइक मैं तिनका ही बना हूँ अभी, लाइक आई कैन डू। पार्टिसिपेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इमरान भाई फॉर्मर लिटरेरी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनको वेलकम भाई। जो है, हाँ, एसजेड हॉल में। और मैं और इमरान भाई जो थे एसजेड हॉल में, जब एसएस डे हुआ था, तो जी। आईपीएस साहब आए थे एक। तो हम्म। उन्होंने सिर्फ हम दोनों को ही अपना नंबर दिया था, और किसी किसी को नहीं दिया था। तो वेलकम। आईपीएस साहब आए थे, हम लोग को नंबर दिया, और वो आईपीएस साहब आज एएमयू के रजिस्ट्रार हैं। चाह रहे हैं जी। ये भी बड़ी ये भी बड़ी कोइंसिडेंट है। खूबसूरत चीज़ है। हाँ जी, मैं एक जितने भी सवाल और स्टूडेंट आया हूँ। है हमारे पास। हम्म। हाँ, ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट इन द एप्लीकेशन। ऑनलाइन सर्टिफिकेट हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। मैं जितना आपका सीवी खूबसूरत होगा, जितना कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप वेराइटीज रख सकते हैं अपने लिए, जितना आप दिखा सकते हैं। देखिए वो आपको खरीद रहे हैं एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल। मतलब अब आपको, आप खुद से जा रहे हैं कि मैं देखिए इस तरीके का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे चूज करें। ठीक है। कोई चीज आपको, फॉर एग्जाम्पल, किसी को दिखानी होती है, जब आपको देनी हो तो आप क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी वेराइटीज दिखाते हैं, उसकी क्वालिटीज दिखाते हैं। तो आपको क्वालिटीज दिखानी है कि आपके पास क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या क्या आपके कोर्सेज हैं, क्या आपकी परसेंटेज है, आपकी क्या क्या आपको आता है, क्या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, क्या 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 चीजें आप कर सकते हैं विद योर एकेडमिक्स। और ऑनलाइन कोर्सेज आजकल वैलिड हैं, बहुत सारे ऑनलाइन करते हैं हम लोग। लैंग्वेज कोर्सेज भी अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी चीज है ये। आप इट्स सो नॉर्मल। जर्मनी की स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे जर्मनी में स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेनली फॉर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। हाइडेनबर्ग यूनिवर्सिटी मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि कैसे हुआ, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जर्मन गए हैं लाइक डुअल मास्टर्स करने के लिए। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन जामिया एंड ही इज डूइंग मास्टर्स अगेन इन लाइक इन फिजिक्स या। तो जर्मन खास करके इसके लिए बड़ा फेमस है। तो मैं बाद में बता सकता हूँ, इस टाइम सॉरी, मैं इस तरीके से कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे स्पेसिफिक नहीं मालूम है कि कौन सी स्कॉलरशिप है या कौन कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन प्रोफाइल भाई की मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे जी, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर बाद में अच्छा, शेयर कर दूंगा इनसे लेके। ठीक है आप ठीक कनेक्ट है। कर सकते हैं। डुओलिंगो आप आजकल बहुत ज्यादा इजीली है, ऑनलाइन आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हैं, हिंदी सीखनी है, मैंने स्पेनिश सीखी थी। जर्मन सीखने की कोशिश करी थी बट इट्स बिट हार्ड टू मेंटेन। हाँ, लेकिन स्पेनिश मैंने सीखी थी डुओलिंगो से। तो आप इस तरीके से भी बेस्ट कर सकते प्लांट साइंस यूनिवर्सिटी इन यूरोप। हैं। बेस्ट प्लान साइंस यूनिवर्सिटी,
मेरी वाली यूनिवर्सिटी अगर आप सर्च करेंगे वो काफी अच्छी है, यहाँ की मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, और इसकी 5 ब्रांचेस हैं। लाइक मेरी बुदा है, गुडोलो है, मार्टन वॉशर है, और और भी 2 जगह और है। तो ये काफी बड़ी है, सेंट स्टेफन, और ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ साइंसेज के लिए इसमें काफी तरह के कोर्सेज हैं। बायोटेक है, हॉर्टिकल्चर है, फूड साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो इस तरीके के काफी कोर्सेज हैं। Minimum इसका नाम percentage आजकल required to get सेंट this स्टेफान नहीं scholarship. है, माते है, मैं ये बोलूंगा, MATE। हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेथ है, पर वो माते बोलते हैं, ठीक। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, गो थ्रू दिस। जी इमरान भाई, बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर, sorry, PG minimum percentage required to get the scholarship. 7.5 आई कैन से, बिकॉज डुअल बहुत मास्टर्स ज्यादा। का थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? मास्टर्स के लिए क्या? डुअल मास्टर्स को थोड़ा ब्रीफ या कर सकते हैं? अभी जो आपने बोला ये कौन सा कंट्री में है? डुअल मास्टर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये तो मैं कहूँगा बड़ी खूबसूरत चीज होती है। जो लोग पढ़ने के लिए इतना मतलब काबिले तारीफ हैं कि अपनी वहां से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, मतलब इतना उनके अंदर जज्बा, शौक है, और मतलब उनको ये भी नहीं लगता कि वो बूढ़े हो रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज ये है ना, लोग ये सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया और भाई कमाना है। लाइक या इट्स अ गुड थिंग। और आपके पास डुअल डिग्री है, आप मतलब 2 सब्जेक्ट में आपके पास महारत हासिल हो रही है कि आप ये भी कर सकते हैं, और आगे चल के आपकी रिसर्च में सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं 2 चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके यहाँ आ रहा है और वो बोलता है मुझे लाइक कपड़े धोने भी आते हैं और खाना भी बना लेता हूँ, तो आप रखेंगे नहीं उसको? हेलो तो खुद सर। आप खुश होकर लेंगे। हेलो। हम्म। यस, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा शादाब एडवोकेट है सर। मैं ये चाह रहा था कि मैं LLM हूँ, हम्म। LLB LL। सर जी। मुझे PhD करना था आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री, जी। यस यस। LLM और उसके लिए, PhD के लिए। तो देखिए, नहीं, PhD के लिए यहाँ पे बहुत सारी अब ये भी तो नहीं मालूम आप किस कोर्स के लिए आप PhD अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी जो कोर्सेज का भी बड़ा फर्क रहता है। तो LLM जो मतलब होता जैसे, है ला में ही किया जाता है, सिर्फ LLM। अच्छा, ओके ओके। एल, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप सर्च करना शुरू करें कोर्सेज को लेके। स्कॉलरशिप तो आप बाद में देखिए, पहले कोर्सेज देखिए कि जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज वो दिखाता है आपको, ठीक है। एक सेकेंड तरीके बता से दूं देखिए, आपको। फॉर हम्म। एक सर, LLB को तो सभी जानते हैं। ये हम्म, मतलब ला की जो मास्टर डिग्री होती है वो LLM होता है। जी जी जी, आई नो। हम्म। LLM के बाद में PhD होता है सर। PhD करनी है आपको, जी। PhD के लिए सोच रहा था। तो PhD आप जब करेंगे तो आपने कोई एक स्पेसिफिक कोर्स कर रखा होगा ना, जैसे लाइक इन अवर केस, हमारे केस में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास जो चूजिंग है अभी इस टाइम, जो मेरा स्पेसिफिक फील्ड है वो मेरा स्ट्रेस फिजियो है, लाइक सर स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो मुझे पता है कि मैं स्ट्रेस में काम कर सकता हूँ, और मैं उस तरीके कोर्सेज देखूंगा। तो मुझे इस तरीके से आप कुछ बताएं तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि सर आपके पास क्रिमिनल, सब्जेक्ट बहुत होंगे। हमारा कोई क्रिम आपकी हम्म। हमारा है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, ओके। तो यस क्रिमिनल लॉ ये है कि आप ऑनलाइन देखिए कि क्रिमिनल लॉ, अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं क्रिमिनल लॉ काइंड ऑफ कोर्सेज इन यूरोप, तो आपको बहुत सारी यस। चीजें दिखाएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज दिखाएगा, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है कि आप उनको मेल कर सकते हैं, और या फिर उस कोर्स के बारे में देखें कि किस तरीके से वो कोर्स दिखा रहा है, क्या क्या चीजें जो आपने पढ़ी है वो रिलेटेबल है या नहीं है, इस तरीके से PhD के लिए। क्योंकि PhD के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, जहां भी आप जा रहे हैं सबसे पहले चाहिए होता है रिकमेंडेशन लेटर, आपके प्रोफेसर का भी, और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म भरने से पहले वो आपको अवॉर्डेड कर दे, लाइक हाँ मैं आपको ले रहा हूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको लेने में। क्योंकि यस। जो उसका लेटर होगा वो आपको उसमें लगाना होता है, नहीं फॉर्म्स में। क्योंकि वो जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मतलब आप मतलब किसी प्रोफेसर ने आपको हाँ कहा है या नहीं कहा है इस चीज के लिए, ठीक है। तो वो जरूरी होता है, और वो कम से कम मेल आप 1 महीने पहले करते हैं कि कम से कम वो जवाब दे दे उस बीच में, हाँ ना, क्योंकि और एक बार में आप बहुत सारे लोगों को मेल करें उस डिपार्टमेंट के, हो सकता है कि वो नहीं दे रहा, उसके पास सीट्स नहीं है, हो सकता है अगला वाला आपको कर दे। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। अपना कोर्स भी देखिए, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं बायो में हूँ और लाइफ साइंस कोर था मेरा, तो उन चीजों में थैंक मैं यू कर सर। सकता हूँ, लेकिन थैंक्स। लेकिन ये छोटी चीजें मैं बता सकता हूँ, ये चीजें आप कर सकते हैं, ये सभी के लिए है, प्रोसीजर सेम है। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। ऑलराइट, बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे लगता है एंड करना चाहिए सेशन को। लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर भेज दीजिएगा इमरान भाई, काफी लिंक्डइन मैसेज प्रोफाइल आ मैं रहे भेजूंगा। मैं माफी चाहूंगा, हैं। आज ओके। मैं काफी ज्यादा बिजी रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, और मैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम। काफी ज्यादा, बस मैं आ गया बस ऑलराइट, कहते हैं।
सेशन को एंड शुक्र करते करो हैं। कि 7 बजे तुमने शुरू नहीं करा, 8 बजे करा, 1 घंटा मुझे मिल हाँ, गया। वो हमारी तरफ से थोड़ा लेट हो गया। हम्म मैंने अपडेट करा था, पर आपको भी थोड़ा काम था, तो हम्म हम्म इसी ठीक है, तो एंड और करते कुछ हैं भी है? सेशन को। मैं वोट ऑफ थैंक्स दे देता हूँ। ओके सबसे पहले तो ओके। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इस प्लेटफॉर्म को आपने 4 चांद लगाए। इट्स अ बहुत काइंड ऑफ आपने अपना प्लेजर। कीमती वक्त दिया, और लोग बाग को बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। वो चाहेंगे आपसे दोबारा जुड़ना, और मैं चाहूंगा कि आप जो है दोबारा आए और एक डिटेल्ड मैं डिस्क्रिप्शन लेके डिटेल आए। हाँ, सॉरी फॉर टू से लाइक सॉरी आई वुड लाइक टू मेंशन टू ऑल द स्टूडेंट, ये जो हमारा सेशन था वो सिर्फ ये था कि आपको इंथराज करा जाए कि आप बाहर के लिए कैपेबल हैं, यू कैन डू, या आई वाज पुशिंग लाइक अ फैक्टर। तो इस बार मुझे मिला कि आप लोग हैं, और मैं काफी चीजों पे काम करूंगा, देखूंगा कौन कौन सी स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो लाइक आई लाइक इट, एंड आई विल आस्क टू माय प्रोफेसर टू कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर या किस किस तरीके से फॉर्म्स आते हैं, क्या करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू each and everything for you which I can possibly. मैंने मॉरल साइंस में एक छोटी सी कोट पढ़ी थी कि कहते थे Mm-hmm. कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, Yes. if health is lost something is lost, if character Mm. is lost everything is lost। ये Yes. प्रोसेस पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग मेकिंग का है कि आपके पास Mm-hmm. क्या क्या चीजें हैं जिससे आपका Mm. कैरेक्टर अपलिफ्ट होता है। मुझे ऐसा Yes. लगता है अपने तौर पे कि सर्टिफिकेशंस, आपके हेल्थ रिकॉर्ड, आपकी को करिकुलर इसी नहीं देखी जाती है कि आप ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है। और हम मैं यही बोलूंगा, मेक योर सेल्फ ब्यूटिफुल इन एनी वर्जन, इन एनी वर्जन। देखिए मैं चाहता हूँ पर्सनली कि मैं अपने लाइक हर किसी की लाइफ बड़ी खूबसूरत है, स्ट्रगल हर किसी के साथ है, इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन है, आप चीखते भी हैं, आप खुश भी होते हैं लाइक। लेकिन ये है कि जितना आप अपना बेस्ट वर्जन कर सकते हैं इन चीजों के साथ साथ, क्योंकि जिंदगी आपके साथ चल रही है, टाइम आपका वही है, सब चीजें बढ़ रही हैं, वक्त बदल रहा है, लोग बदलते रहते हैं। आपको भी फिर अपने आप को हल्का सा अच्छाई के लिए बदलना है, अपने लिए खास करके, कि आप खुद को एंजॉय कर पाए। और हर चीज में शुरुआत होने से पहले बड़ी मुश्किलात होती हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ बड़े खूबसूरत तरीके से कोजी इन्वायरमेंट में, पर मैंने इसके पीछे बहुत कुछ शायद छोड़ा भी, लाइक आई हैव डन लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, दैट्स व्हाई आई एम हियर मे बी। एंड लक भी है आपका, ये भी है कि आप दुआ करें, अल्लाह से मांगे। हर चीज ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप दुआ भी मांगे अपने हाथ में बेहतर से बेहतर हो। कंप्यूटर्स की नॉलेज बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में भी कई इंस्टीट्यूट जो है करवा रहे हैं बायो साइंसेस का कोर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स, जिसमें वो पाइथन वगैरह सब सिखाते हैं। तो नो, कंप्यूटर्स की मैं नॉलेज ये भी बहुत बोलूंगा, ज़रूरी है डेटा बायोटेक्नोलॉजी, एनालिसिस के लिए। मुझे इंडिया का नहीं मालूम इतना, क्योंकि मेरे टाइम तक तो कोई कंप्यूटर साइंस नहीं था, एज वी नो। आईपैप बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूशन है, मेरे दोस्त गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता दो है। मास्टर्स की डिग्री एक साथ है, वो प्राइवेट है अनफॉर्चुनेटली। ओके। दो मास्टर्स की डिग्री एक साथ दे रहे हैं वो, और पाइथन वगैरह बहुत ज्यादा डिटेलिंग में वो करवा रहे हैं कोर्स। जी, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, लाइक मेरे टाइम में ये था कि मास्टर जब मैं कर रहा था, मैं कोर बॉटनी से था, प्लांट फिजियो थी मेरी, और मैंने लेकिन चूज करा था नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जो मेरे लिए बड़ा नया था, बड़ा खूबसूरत था। और मैं बायोटेक डिपार्टमेंट जाता था जेएनएमसी के सामने, और मैंने नैनो बायोटेक पढ़ी क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत, और मेरा काम भी नैनो पार्टिकल से रिलेटेड था, तो मुझे पढ़ना भी था वो, मैंने इसलिए भी चूज करा। यहाँ पर जब मैं आया, जब मैंने बायोटेक पढ़नी शुरू करी, तो मेरा फर्स्ट ईयर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो आपको सिखाएंगे जो नहीं आता, और अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है इंडिया में, बहुत अच्छी चीज है अगर आपको आता है। मैंने यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखा है पहली चीज में, और सेकंड सेमेस्टर में आर स्टूडियो रिसर्च प्रोग्रामिंग होती है, उसमें आप मनोवा अनोवा ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें हैं वो प्रोग्रामिंग बेस पर हो गए, सारा डेटा आपकी सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, या कोई आप जीन ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, चेक करना है, प्राइमर आपको डिजाइन करने हैं, लॉट्स ऑफ थिंग यू डू इन बायोटेक। तो हर चीज में, इवन आप क्वालिटेटिव पीसीआर करते हैं, वो भी आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं सिखाते, वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ आप आएंगे, वो आपको सिखाएंगे, मौका मिलेगा आपको, लेकिन अब आप वहाँ आप सीख सकते हैं, दैट विल बी अ, बहुत इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन पाइथन वगैरह मुझे ये नहीं मालूम कि वो यहाँ यूज, अभी तक तो मेरे लिए यूज नहीं रहा, लेकिन हाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स रहा है कि आप प्रोटीन एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें। कैन आप बीएससी ज्योग्राफी स्विच टू मास्टर इन बायोटेक, कोई आपका कोर्स ऐसा हो, आप स्विच इंडिया में तो आप कर सकते हैं कि बायोटेक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यू कैन डू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन आपकी कोर्स रिलेटेबल होना चाहिए, क्योंकि बायोटेक में बहुत सारी स्ट्रीम है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, मेरा एग्रीकल्चर है, आप किस तरीके से जा रहे हैं, तो अपने कोर्स के हिसाब से आप चेक करें।
उसमें देखें कि आपने जो पढ़ा है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ रिलेट होते हैं या नहीं होते हैं, आपका सिलेबस जो बता रहा है वो आपको उसमें आता भी है या नहीं आता है, यानी बिल्कुल आपका सब कुछ नया है। जियोलॉजी वाले बच्चे बायोटेक में जाते हैं अपने यहाँ, तो मुझे उनका मालूम है जियोलॉजी का खास करके। ऑलराइट, बहुत देर तक चल गया सेशन और मैं जी बहुत जी बहुत शुक्रिया करता हूँ इमरान भाई आपका, आप आए, आपने इस प्लेटफॉर्म को अपना टाइम दिया. So on behalf of the Aligarh Nans, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence today and making this event a tremendous success. First and foremost, I would like to express my deepest appreciation to our distinguished guest speaker, Mr. Imran Khan Sahab, and your expertise and insight have enriched our understanding of the topic and inspired all of us. Your valuable time and presence here today are sincerely appreciated. I would like to extend our gratitude to the organizing committee member, especially to the founder and managing director of the Aligarh Nans, Mr. Engineer Asfar Ali Khan Sahab, and all the organizing secretary member of Aligarh Nans. Now, in conclusion, we extend our heartfelt thanks to everyone who have participated and played a part in making the event a great success. Your contribution, whether big or small, have made a significant impact. We look forward to your continued support and participation in your future endeavor. Thank you very much and have a wonderful day. जिस किसी थैंक के यू भी सो क्वेश्चन रह मच। चुके हैं, मैं इमरान भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप चैट बॉक्स में कर दो और फिर इमरान भाई से हम दूसरे सेशन में पूछ लेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हैं, मुझे ये नहीं मालूम, कुछ की आवाजें सुनी, कुछ के जवाब मैं दे पाया हूँ। एंड थैंक यू फजल for your kindness, for your time, for support and everything, which I can do. Yeah, it's Thank like you, a bye. kind of Thank you. blessing for me. Thank you. Bye. Allah Hafiz. All right. You may all leave. The meeting is dismissed.